Namaste, respected dignitaries, teachers, students, and former family members. I am Dakshita Gupta from grade 9th, and today I am privileged to introduce a session that has been inaugurated today. तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं. तू गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं. मनुष्य का अतीत, आज और भविष्य निर्भर करते हैं उसके विचारों पर. We are defined and determined by our thoughts. It's important to feed our brain with strength, and it's important to feed our heart with compassion. Strength and compassion, along with knowledge, are the most valuable steps to our success. With the same thought, Ram Ratna Vidya Mandir wishes to inculcate amongst the students to love, to acquire knowledge and wisdom, to use the knowledge through its monthly inspirational talk segment, Gyan Bodh RRVM. Gyan Bodh, which represents spiritual, moral and intellectual wing of RRVM with motivational speakers addressing our students. Today is the inaugural event of Gyan Bodh RRVM. Before we start, I would like to introduce an eminent personality, Dr. Kavita Rege. She is the retired principal of Sathe College, Mumbai, rank holder in BSc and MSc examinations in Nagpur University, PhD in chemistry from the University of Bombay, research scientist with Alchemy Research Center, over 34 years of teaching experience at undergraduate and postgraduate levels with 16 years as principal from 2001. She is coordinator of Indira Gandhi National Open University, IGNOU. Dr. Kavita was involved with assessment at accreditation of many colleges in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh. Wow, the list goes on. Dr. Kavita was a member of delegation of principals at the Sharif at Mumbai. Dr. Kavita organized over 50 major and innovative programs and started a well-equipped theatre. She is a member of Solidarity Meet Core Committee formed by Honorable Government Shri S.C. Jamir. Dr. Kavita Ma'am is president of Inner Wheel Club of Bombay West in year 2018-19, chairperson of the university's volleyball committee, member of the Censor Board of Film Certification CBFC, member of selection committees of Keshav Shrishti Puraskar Samiti. She is on the jury board of L'Oreal for grant of scholarship to needy students. She is a member advisory board of Lokmanya Seva Sangh, board of directors of Elena Institute of Management and Tasmira Institute of Commerce and Science. Ma'am has also been counselor to a number of foreign students on IYE exchange. Let's have a huge round of applause for Ma'am. I request you to introduce the speaker of the day. My apologies for that long introduction. I hadn't intended that. Dakshata has been extremely kind, I'll just say that. Here we are to welcome a very, very passionate motivational speaker. It's very unusual that we see such people in today's world. See, there are a lot of people who are just the speakers, but this gentleman's passion comes from heart and from his work. That's what makes him different. Yajurvendra Mahajan, born in a well-educated family, which was socially empathetic, working for well-being of the society came very naturally to Yajurvendra. And instead of building his own career, he realized that many bright but underprivileged students are deprived of educational opportunities and subsequently career opportunities. So he took a bold decision of selling his ancestral property, which was his home. He sold it off. Also, he and his wife compromised and had a very simple wedding, saved on that expenditure as well, and started preparing students for competitive exams. So this is something which was, like he gave up his career and started this. Later on, he realized that there are some Divyang, as they are called, differently abled students who are finding it difficult. They are not getting opportunity to get trained for competitive exams. He took that challenge also.
And I would say that I have visited that place, so I have seen how involved he is. It's simply amazing. He looks after everyone with more than parental care. More than parental care, why I'm saying, he loves them so much as if a grandmother, grandfather would do. At the same time, he's providing everything for them like the parents. And the love and affection that he showers on them is very well reciprocated by them in every way possible. And till now, he has trained so many. We saw a sort of setup wherein he had those who had lost their limbs or had lost their eyesight. He is providing them all the facilities to study for competitive exams. He is providing the normal students a very good study atmosphere, all free. He is raising money and he is providing it all. He's so passionate about it that he wrote books for them, he trained teachers so that this gets propagated everywhere. So I think today when we listen to him, I'm sure we are going to get insights into what we must do with our time and money that is at our disposal. This is something which we may not have. See, as students, you may not realize the opportunities that are given to you. You know how fortunate you are to be here in this fantastic ambience and you are studying, learning with no worries about your future. It's an amazing bliss for you young students. So today I would like you to understand how blessed you are. And Yajurvendra will be showing one video also wherein his work will be actually portrayed. So I'm not going to go into it because it can get a little repetitive. It is in Marathi, but I think it's simple Marathi. All of you will understand. But here you have a person who is passionate, who is inspired by Vivekanand and wants to spend every bit of his energy and time for the society. So here we have, my dear students, teachers, parents, we have someone who will open a window in your mind, enlighten you about what we must do with our good faculties and facilities. Thank you very much. May I request Yajurvendra to come up on stage? Thank you. नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? हमारे जो पालक है यहाँ पर, विमल जी, डॉक्टर रेगे मैडम, डॉक्टर मांडके मैडम, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर उनको बहुत विश्वास है। लेकिन बीच बीच में वो मुझे चेक करते रहते हैं कि ये सही में कुछ ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कुछ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके लिए वो मुझे कुछ चैलेंजिंग काम देते हैं बीच में, ऐसा फ़ोन करते हैं, यजुर्वेंद्र ऐसा ऐसा है, आना है, ठीक है। तो उसमें से एक काम आज दिया है और वो चैलेंजिंग इसलिए है, देखो दोपहर के बाद का जो सेशन होता है ना, खाना खाने के बाद, बहुत विश्वास रखकर दिया जाता है या फिर चेक करने के लिए दिया जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और वो भी इतना बढ़िया खाना, तो हम खाकर यहाँ पर बैठे हैं और वो भी सारे दोस्त इतने साल के बाद मिले हैं और उनको बोला जा रहा है अभी चलो अंदर बैठो। हमारे सुपर हेडमास्टर बाहर खड़े थे, चल तेरे को ये जिम्मेदारी है, सबको लेके आ। आप समझ रहे हो? बहुत चैलेंजिंग काम होता है और लेकिन मुझे खुशी है आपको मिलने की, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके सुपर जूनियर्स पीछे बैठे हैं, नमस्ते, हाय, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। ऐसे ही किसी दिन बताया जाता था चलो सबको एक साथ वहां आना है, और ऐसे हाथ करके सब आया करते थे, ठीक 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 ठीक। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आई गिव यू वन प्रॉमिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा। एक गारंटी लेकिन देता हूं, पक्का, आफ्टर 1 hour देयर विल बी some sort of transformation,
गारंटेड। आप यदि कहोगे ना नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, फिर भी होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ओके, सबसे पहले लेट अस एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। यहां आकर मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी स्कूल मिली यार हमें। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने 2000 गांव का पानी पिया है, यानी 2000 स्कूलें देखी है भारत की, हर प्रकार की, लेकिन इतना सुंदर स्कूल। और स्कूल हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है, वो बहुत ही साधारण बात है, वहाँ के लोगों से होती है। और मैंने देखा दोपहर में जब सेशन शुरू था, तो जब सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो रही थी, तो कितने अच्छे भाव से आप तालियां बजा रहे थे। सो ये लोगों ने हमें खड़ा किया है। 25 years of great journey, isn't it? Do you agree with me? So let us express gratitude for them with wonderful clappings. एक मिनट। मैं आपसे 2 बातें चाहता हूं, सिर्फ 2 बातें। दूंगा 20, मांगूंगा 2। 1, ऑनेस्टी। लाइफ लॉन्ग रखनी है नहीं रखनी है आप डिसाइड कीजिए, लेकिन 1 घंटा तो रखनी है। यानी जो भी हमारा वार्तालाप होगा उसमें जो है वो सच आप कहेंगे, आइडियल कुछ नहीं कहेंगे, लुकिंग गुड वाला बात नहीं होगा। और दूसरा, जो हम में है वो ट्रेमेंडस एनर्जी दिखेगी। ओके, मैंने अभी कहा सच अ वंडरफुल पीपल इन द स्कूल, और आप तालियां बजा रहे थे, वो किस प्रकार की थी मैं बताता हूं आपको। ऐसा लगता है कि कितना अन्याय हुआ है। ठीक है, मैं आपको तालियां बजा के बताता हूं एंथुसियाज्म क्यों जरूरी है बेटा, बिकॉज इट इज इन अस। मिल गया है, पता है, ये मिलता नहीं है सबको, नॉट टू एवरीबडी, वी हैव इट। ओके, सो आई विल शो यू। अब मेरी बारी है, ओ भाई साहब मेरी बारी है, जस्ट सेकंड्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द बेस्ट वन। मैं जिंदगी में जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं सब बड़े लोगों से, उसमें से एक बात जरूर सीखा हूं, बहुत सिंपल है। तुम्हाला ना मागे जावं लागेल, हे उचलून, हां मला हे असं मी फिरायला जाता, ठीक है। तो सिंपल बातें बताऊं या डिफिकल्ट? सिंपल। हाँ, तूने तो बता दिया सिंपल, लेकिन तुझे पता है बेटा, इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। समझ गए? अगले साल समझ जाओगे, ठीक है। तो सिंपल बात है, मैंने ये सीखा है बेटा कि आप जो भी काम करोगे जिंदगी में वो बेस्ट करना है। जो हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जो भी करना है बेस्ट। आप यहां देखिए, सब तरफ देखिए, आप तो उसी माहौल में बड़े हो। कहीं भी जाइए, आप खाना खाने की जगह जाइए, वॉशरूम जाइए, हॉल जाइए, आपको बेहतरीन बातें दिखेगी। ये पैसों से नहीं आती है, ये अप्रोच से आती है। आप समझ रहे हो? बेस्ट कुछ भी हो, कुछ भी। एक हमारे दोस्त है, वो वॉशरूम साफ कर रहे थे, मैं मिला, उनको नमस्कार किया। आप भी करते जाइए, है ना। हम बहुत सो कॉल बड़े इंसान आए कि उनको बहुत प्यार से नमस्ते करते हैं। नमस्कार, आइए, कैसे आप? अच्छा है। तो ये नमस्कार सबको करना चाहिए। तो मैंने उनको किया, इतना बढ़िया साफ कर रहे थे, क्या बताऊं। एंड देयर वाज स्माइल ऑन हिज फेस। दैट इज कॉल्ड बेस्ट। तो मैंने ये सीखा जब मैं कॉलेज में था, विवेकानंद जी से इंस्पायर हुआ। तो पहली बात सीखा, जो भी काम करूंगा जिंदगी में वो बेस्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिसमें तालियां भी आती है, बैठना भी आता है, बोलना भी आता है, काम करना आता है, लोगों के साथ जो आपका बर्ताव हो वो भी आता है, सब कुछ आता है। ओके, सो लेट अस ट्राई द बेस्ट क्लैप्स फॉर आवर वंडरफुल ब्यूटीफुल स्कूल एंड द पीपल इटसेल्फ। और जोर से, अरे ऐसे नहीं।
पीछे आवाज नहीं आ रही यार। बहुत बढ़िया, और जोर से, यू कैन डू इट बकअप। और जोर से। वाह, क्या बात है। वंस अगेन। यहां से आवाज नहीं है, 7th स्टैंडर्ड। ओके, आहा, अच्छा लग रहा है। कैन यू फील द एनर्जी? आपको बताऊं, थोड़ा निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं ना, स्कूल तो अच्छा मिल ही गया, लेकिन घर पर जब हम रहते हैं, काम करने की आदत नहीं होती है, श्रम ही नहीं होता है, इतनी आराम की जिंदगी होती है। जब काम होता है ना, देन यू आर लाइव, अलाइव, जिंदा हो जाते हो। अच्छा लग रहा है ना। पहली बात तो यार ग्रैटिट्यूड दे दिया हमारे स्कूल को, वो अच्छी बात हुई। दूसरी बात मेरे लिए अच्छी हुई, 2-4 लोग सोने की संभावना थी, अब वो नहीं रही। इतनी एनर्जी जब बॉडी में आ जाती है ना, चाहे तो भी आप सो नहीं सकते। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मुझे बहुत अच्छी लगती है स्कूल। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे 1 रुपया इंजेक्शन, 1 रुपया दवाई, ऐसा काम था। बहुत एंटरप्राइजिंग थे, बहुत जल्दी चले गए वो। तो 12वीं तक ना मेरा वेरी हैप्पी गो लकी टाइम था। हैप्पी गो लकी पता है ना, जैसे हमारा होता है जनरली, आराम की जिंदगी, जो चाहिए वो मिल जाता है, जैसे चाहिए वैसे होता है, और बढ़िया होता है सारा। और 4-5 दोस्त होते हैं, यस नो, अपना टीम ग्रुप होता है, गैंग, सॉरी ग्रुप नहीं, गैंग होता है, और बड़े आराम से मजे करते हैं। मैंने यही किया 12वीं तक। पढ़ाई सिर्फ आखिरी 15 दिन, दैट्स साइन ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, यू नो। साल भर पढ़ना ठीक नहीं होता है, 15 दिन में यू कैन परफॉर्म। ऐसी गलतफहमी मेरी थी, ठीक है। लेकिन मेरे जिंदगी में ना 3 बातें हुई, उससे मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। वो 3 बातें थी। पहली बात, बेटा, एक दिन हुआ क्या, हमारे कॉलेज में एक प्रकाश जी पाठक थे, वो आए और उन्होंने उनका लेक्चर रखा था स्वामी विवेकानंद जी पर। तो अभी अपना स्कूल का तो माहौल अलग है, बहुत अच्छा है। जनरली बाहर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि रेगुलर लेक्चर में भी कोई जाता नहीं है, बंक। ओके, और ये तो संडे रखा था, 11 सितंबर। तो मेरा एक दोस्त लेके गया मुझे, मैंने उसको बोला, यार पागल हो गया है तू, संडे है और तू लेक्चर के लिए लेके जा रहा है। लेकिन वो मुझे लेके गया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात करना जिंदगी में, दोस्त संभल के चूज करना। जिंदगी बना देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। वो मुझे लेके गया, और बताऊं, उस दिन मैंने स्वामी जी के बारे में सुना, विवेकानंद जी के बारे में। बाप रे, मुझे ना समझ में कम आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ी कठिन भाषा थी, लेकिन स्टोरी समझ में आ गई। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि यार क्या आदमी है, 100-150 साल हो गए इनको जाते हुए, लेकिन अभी भी लोग याद करते हैं। दिस वॉज इन माई माइंड। तो ना मैं लेक्चर सुनने लगा अच्छे अच्छे, दैट चेंज माई लाइफ। दूसरा, मैं किताबें पढ़ने लगा। हम कॉलेज की भी किताबें पढ़ते नहीं थे। आपका क्या है, मुझे, इंजीनियर्स कितने हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग किया है? नहीं, आप नीचे कर दीजिए हाथ। आपके वक्त किताबें पढ़ा करते थे। हाँ हाँ, ठीक है। ये कोई भी कोर्स किया है, हम किताबें नहीं, उसके नोट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमने कॉलेज की किताब नहीं पढ़ी थी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर की बात ही नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन एक किताब मुझे मिली, माय गॉड, उस दिन से मुझे किताबें पढ़ने की आदत लग गई। लोगों के लेक्चर सुनना, किताबें पढ़ना अच्छी अच्छी। और तीसरी बात थी, जो ग्रेट लोग होते हैं ना, परफॉर्मर होते हैं, कुछ करते हैं उनकी जिंदगी में, मुझे उनके साथ रहना बहुत पसंद आने लगा। यानी जैसे ये आ गए हमारे कॉलेज में लेक्चर देने, समझ लीजिए उनका लेक्चर,
तो मैं दिन भर उनके आगे पीछे ही रहूंगा। आपको पानी दूं, आपका बैग पकड़ूं, मैं छोड़ने आऊं आपको? सर हमारे यहाँ ना, यहाँ आम बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको लाके दूं मैं? आप समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं रहने लगा। इन 3 बातों ने पूरी जिंदगी चेंज कर दी। मेरे सपने बदल गए। हाँ, बदल नहीं गए, मैं सपने देखने लगा। मैं एक पूछूं आपको, ऑनेस्टी की बात पहले ही हुई हमारी। आपके सपने क्या है? क्विक, आप बताएंगे? To become a data scientist. To become a data scientist. Okay, very good. To become a data scientist. Give him great hands. ओके, थैंक यू। जिन लोगों को डेटा साइंटिस्ट पता नहीं है, बाद में इनको मिल ले, ठीक है? ओके, आपका? सर इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके। आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं फिर से पूछता हूं, आपका सपना क्या है? ठीक है, आप टीचर है ना या स्टूडेंट है? नहीं नहीं, पूछूंगा, उसके लिए अलग सेशन लेंगे। स्टूडेंट्स का है बाकी के? ओके ओके ओके। और आप क्या है? आप पेरेंट्स में हैं? To become a great person, money and all that things, so that I can get my desires done. ओके, सच अ ग्रेट थिंग। आपको? Helping people and becoming a psychologist. ये साइकोलॉजिस्ट बनना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे इतना बताइए, पास स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ? कहाँ बैठे हैं पास स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 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 ओके, दैट्स फाइन। ओके, वहां पर भी है। आप आगे आ जाइए ना जरा प्लीज, आप प्लीज आगे आ जाइए, मुझे थोड़ा आसानी होगी। जितने ग्रेड सीनियर स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए प्लीज, मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, इफ पॉसिबल। ओके, दैट्स फाइन। ओके, और कुछ पूछता हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे भी ये सारे क्वेश्चंस थे। आपको क्या बनना है? MBBS डॉक्टर। मुन्ना भाई MBBS, वाह। ओके, आपको क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको? डिसाइडेड नहीं अब तक। अच्छा, डिसाइड नहीं किया है, वेरी गुड, नो इश्यू, ठीक है ठीक है। हाँ बेटा? Footballer. फुटबॉलर, ओके ओके। अभी आगे सुनने की तैयारी रखिए, आगे जो बैठे हैं लोग, अभी यूट्यूबर भी बोलेंगे वो धीरे धीरे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। ये बहुत अहम सवाल है, आपको क्या बनना है? और लोग क्या बनते हैं? क्या क्या बनते हैं लोग? जैसे रिच टाइप ऑफ पीपल क्या क्या होते हैं? रिच पीपल होते हैं। कितने लोगों को रिच बनना है? 1 2 2.5, ओके 3, वेरी गुड। मैं और एक बात बता देता हूं, रिच बनना ये बहुत अच्छी बात है, हा? बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली देयर इज अ स्टार कि सही ढंग से रिच बनना है, गलत इससे रिच नहीं बनना है। लेकिन रिच और क्या टाइप होता है? अरे सक्सेसफुल कितने लोगों को बनना है? सक्सेसफुल, ग्रेट ग्रेट, कितने लोगों को बनना है? टीचर भी बन सकते हैं, नो इशू, ठीक है? ओके, सक्सेसफुल कितने लोगों को बनना है? ओके, ग्रेट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और क्या होता है? हाँ, फेमस कितने लोगों को बनना है? फेमस। मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखता है मेरा बेटा और मुझे बोलता है, पापा आप तो फेमस हो गए बहुत। ठीक है, ओके ओके, फेमस बनना है, ग्रेट। और क्या बनते हैं लोग? भाई साहब,
भाई साहब आपका हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ क्या बता रहा था, बोल। वो बोल रहा था उसको यूट्यूबर बनना है, तो मैंने चैनल का नाम पूछा। हाँ, यस यस यस, गुड गुड। नहीं नहीं, डोंट वरी, तू चिढ़ना मत, सही बात है। गुड गुड। और क्या बनते हैं लोग? हाँ सर, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी चीज है, बाकी सारी चीजें बाद में। क्या बात है, ये क्या होता है लेकिन? निस्वार्थ भाव से सेवा देना। तो मुझे एक बात बताइए, आपने ये सुना है कभी अच्छा इंसान बनना? ये क्या होता है? जैसे रिच पर्सन, तो क्राइटेरिया क्या है? पैसा है ना, पैसा होना चाहिए ना बहुत, तो रिच हो जाते हैं। सही बात है। सक्सेसफुल कहलाते हैं जब कुछ पाने की कोशिश करे और मिल जाता है, तो वी कॉल इट सक्सेसफुल। यस नो? या सो ये अच्छे इंसान वाली क्या क्या बातें होती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैनर्स होती हैं और अच्छी आदतें, मतलब अच्छे से काइंडली टॉक्स। ओके, बहुत बढ़िया। काइंडली टॉक। हाँ, आपको कहना है बेटा कुछ? बोलो बोलो। ठीक है, और पीछे? वेरी गुड, कमिंग। Smart work. स्मार्ट वर्क। वैल्यूज। वैल्यूज, आप सुन रहे हो सब? यस नो? ओके, ये वैल्यूज की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है बेटा वैल्यूज में? अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छे से रहना, फिर इज्जत करना सीखना। अच्छे से रहना, अच्छे से इज्जत करना, लेकिन अच्छा क्या? हाँ, Discipline and manners. डिसिप्लिन से ज्यादा रिलेशन नहीं होता है अच्छा होने का। हाँ बेटा बोलो। दूसरों की मदद करना। अरे क्या बात है, एक बार तालियां हो जाने दीजिए उसके लिए। ओ पाजी, उसने क्या कहा? दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना। ओके, और थोड़ा आगे वाले लोग बताएं, आपको क्या लगता है? मैडम हो गया? हाँ तो बताएं, कोई बात नहीं। अच्छा इंसान वो है जो किसी को हार्म नहीं करे, किसी को harm, they shouldn't harm someone, they should tell the truth, they shouldn't steal anything. This is because ahimsa satya acharya brahmacharya aparigraha. जय जिनेंद्र। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम सुनने में मिलता है ना, किसी को बोला कि क्या बनना है, मुझे यार सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, और उसके लिए बहुत काम होता है, लेकिन अच्छा इंसान क्या होता है और वो मुझे बनना, ये स्ट्रांगली नहीं फील होता है। देखो, और हो भी गया तो पता नहीं चलता है यार ये है क्या, ये होता क्या है, कैसे करते हैं। और एक कैटेगरी है, पता है, और एक कैटेगरी है, मुझे वो पास स्टूडेंट से चाहिए एक्चुअली। देयर इज वन मोर कैटेगरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। बैठी बैठी बैठी। अपने सिद्धांतों का पक्का रहना और आगे बढ़ना, साथ ही साथ अपने पुराने सभी दोस्तों को प्लस टीचर्स को याद रखना, और क्योंकि उनकी सीढ़ियों पे चढ़ के हम आगे बढ़े हैं और आज जो हैं हम उन्हीं के चलते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड। मेरा सवाल अलग है और इससे, और एक कैटेगरी है जैसे सक्सेसफुल, ओके, समझ रहे हो? और क्या है? रिच, फेमस, अच्छा इंसान, और क्या है? और एक है यार, कुछ तो ध्यान देना। ओ पीछे क्या कर रहे हैं हम? पीछे से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है? इतना गुस्से से देखता है मेरी ओर। हाँ, ओके ओके, बताया कोई? और एक कैटेगरी है जो आप बन सकते हो। Failure. फेलियर तो यार वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो बनना नहीं पड़ता है, हो ही जाता है कभी कभी, ठीक है। और क्या होता है? और एक कैटेगरी है कि वो हम बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? Be positive. पॉजिटिव। ओके, बहुत बढ़िया। पास स्टूडेंट है ना? हाँ। और मैंने देखा
ये जो पूरा ग्रुप है ये सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिकली परफॉर्म कर रहा था खाने के पहले। सबसे अच्छी तालियां इन्हीं से बज रही थी, मुझे पता है, मैं देख रहा था। बहुत बढ़िया। आपका नाम? ऋषभ। आपको क्या लगता है? देयर आर टाइप ऑफ पीपल, एक सक्सेसफुल, दो बहुत फेमस, रिच, अच्छा इंसान, और एक कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स। ओके, कुछ हद तक ठीक, सही जवाब, बहुत उम्दा खेल रहे हो आप। ओके, और कोई बताएगा? पंक्चुअल? नहीं यार, पंक्चुअल छोड़ दो, वो बाद में। हाँ, पर्सनालिटी नहीं, यही प्रॉब्लम है हमारी। इस कैटेगरी के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है, बताया नहीं जाता है इस स्कूल में, लेकिन वो बताया गया है, सिर्फ रिवीजन करने में आया हूं। हाँ, और नहीं आपने, हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम? आपका लोकेश। सर मेरे हिसाब से अच्छा आप जो वापस ढूंढ रहे हो ऐसा बंदा जो समाज को वापस कुछ दे सके। ओके, वो तो अच्छा इंसान होता है। हाँ हाँ ना, देखिए, अच्छा इंसान की एक क्वालिटी है जो किसी को दुखाते नहीं है, सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यस नो? लेकिन इसके साथ और एक कैटेगरी है, जो कैटेगरी वहां पर कंपटीशन ही नहीं है ज्यादा, बहुत कम लोग हैं। कौन बताएगा? माय गॉड। ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी, दे आर गुड पीपल, अच्छे लोग। ये जो लोग हैं, वो जो शब्द है, आप दिन में कम से कम 20 बार उसका यूज करते हो, ऐसा वो शब्द है। कितनी बार? 20 बार। मोबाइल में भी लिखते हो? नहीं, आप तो जवाब ही दे दोगे। इंस्पायर करने वाला। ओके, आप और करीब आ गए, और करीब आ गए आप। एक है कि यार मुझे सक्सेसफुल बनना ही है, अच्छा बनना है, लेकिन मुझे ये बनना है। आइडल? इंसान बनना। इंसान, वो तो अच्छे इंसान में आ गया, बहुत बढ़िया। सोशल वर्कर। सोशल वर्कर आर वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अच्छे इंसान। बिजनेसमैन भी अच्छे इंसान होते हैं। हाँ? ठीक है, और चलो अभी मैं बता देता हूं, समय कम है मेरे पास। अच्छा विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी, ओके, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है, आप भी सुनना, है ना? उस कैटेगरी को कहते हैं ग्रेट इंसान। ग्रेट, आप समझ रहे हो? ग्रेट। हमने इस वर्ड को बहुत जनरल यूज कर दिया है। किसी ने आपको चॉकलेट दिया, सो ग्रेट, व्हाट इज ग्रेट इन इट? नथिंग इज ग्रेट इन शेयरिंग चॉकलेट। आपको पता है बेटा ग्रेट कौन लोग होते हैं? मैं बताता हूं आपको। आप ही आ जाओ, आपका नाम? लोकेश ओझा। लोकेश क्या करते हो? बिजनेस है टेक्सटाइल्स का, फर्निशिंग फैब्रिक का। क्या बात है, ग्रेट। लोकेश थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है ना? लोकेश सोच रहा है यार ये क्या हो रहा है क्योंकि ये बहुत टॉपिक हिस्ट्री का बहुत किसी को अच्छा लगता नहीं है, किसी को लगता है अच्छा। लोकेश एक ऐसे इंसान थे बिफोर इंडिपेंडेंस, महाराष्ट्र में कपल था एक, उन्होंने इसलिए काम किया कि लड़कियों को एजुकेशन मिले। ज्योतिबा फुले। हाँ, मेरी इज्जत रख दी तूने यार, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। ओए बजाओ। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। अभी देखो, हाँ मैं बताता हूं आपको। यस, थैंक यू बेटा। ज्योतिबा फुले, ठीक। आप और उनकी वाइफ?
महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले। अरे क्या बात है। अभी आप बताओ आपके मम्मी का नाम क्या है? उर्मिला गोविंदलाल ओझा। उर्मिला जी। और उनके मम्मी का? गौरी देवी, सुंदर भाई। पक्का, ओके, वेरी गुड। सुंदर भाई। और सुंदर दादी जो थी हमारी, सुंदर भाई नानी सॉरी, वो मराठी में प्रॉब्लम है। सुंदर नानी जो है, उनकी जो माँ थी उनका नाम? माँ का नहीं नाम पता है, लेकिन पर नाना का नाम पता है। नहीं, पर नाना नहीं पता है। ये मुझे क्वेश्चन होता था जब मैं कॉलेज में था कि यार जिनकी वजह से मैं हूं आज, खून भी वही दौड़ रहा है, और खून छोड़ दो यार, प्रॉपर्टी भी उनसे ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने ही संभाली थी, पहले वालों ने तो संभाली नहीं है ज्यादा। उनका नाम तक नहीं पता यार। और कौन ज्योतिबा, कौन सावित्री, उनका पूरा नाम और काम भी उन्हें पता है। आप समझ गए व्हाई? दे वर ग्रेट पीपल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज के लिए बहुत 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 किया। और सुंदर बाई जो थी ना, वो बहुत अच्छी इंसान थी, ठीक है। उन्होंने पाल पोस कर सबको बड़ा किया, बड़े अच्छे संस्कार दिए। कितने लोगों को दिए? 4, 5, 10, 40, तब तो टीम होती थी, ठीक है। 40 लोगों को दिया। आप समझ गए बेटा, ये हो गए अच्छे इंसान। लेकिन सावित्री बाई ने और महात्मा फुले जी ने लाखों महिलाओं को एजुकेशन मिले इसलिए काम किया। दैट इज कॉल्ड बीइंग ग्रेट। और इसलिए वो 150 साल के बाद भी हमें याद है। यस नो? आप समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड ग्रेट। इसका मतलब एक है, सबसे ज्यादा काम, मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर लाइफ, यदि हम किसी के लिए बहुत काम करें और ह्यूज नंबर्स ऑफ पीपल की जिंदगी बदल जाए, यू आर कॉल्ड ग्रेट। ठीक है। अभी मैंने ये क्यों बताया, एक्चुअली मैंने थोड़ा टोन चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे सामने स्कूल के बच्चे ज्यादा बैठे हैं। ये बात यदि हमारे जहन में ही नहीं है तो होने की संभावना ही नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा वी रीच टू मैक्सिमम दैट सक्सेसफुल बनना है। 200 करोड़ प्रॉपर्टी, 2 खोका, क्या जो कुछ होता है, इट्स ग्रेट, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, वंडरफुल। उसके आगे जो है दैट इज ग्रेट। आजिम प्रेम जी, इनका नाम सुना है आपने? कितने बच्चों ने सुना है? हाथ उठाइए। आजिम प्रेम जी, बेटा आजिम प्रेम जी का नाम सुना है? क्या बात करते हो, रियली, सीरियसली? माय गॉड, माय मीन्स यू आर ऑल्सो गॉड। ओके। आजिम प्रेम जी अपने आपको आपके सीनियर बता देंगे कौन है। लीजिए। ओके। आजिम प्रेम जी, आप टीचर हो? हाँ, मैं बताता हूं, आप रहने दीजिए। भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे बड़े, विप्रो कंपनी का नाम सुना है? हाँ, उसके फाउंडर, ओके, फाउंडर तो उनके पापा थे। वो क्यों ग्रेट बने पता है? 2 कारणों से। उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी अच्छी हुई, उनको रोजगार मिला। 1000 नहीं, लाखों लोगों की, पूरी भारत की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट उनका हुआ। एक, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ग्रेट बने। मैं भी क्या बेटा, पाणी नका देऊ कोणाला, दादा पाणी नको देऊ कोणालाच, मला पण नको देऊ, ठीक है बेटा। आपने 55 ये नंबर सुना है कभी? 55 55। तो ये जो आजिम प्रेम जी है, इन्होंने 55,000 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। 55,000 करोड़ रुपए, इसलिए वो ग्रेट बने। आप समझ रहे हो? हमारी भारत की संस्कृति ये है, यहां पर जो बहुत कमाता है उसे अच्छा कहा जाता है, कहना चाहिए।
ग्रेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन कमाने के बाद जो मैक्सिमम दे, थोड़ा थोड़ा नहीं, मैक्सिमम दे, उसे यहां पर ग्रेट मानने की परंपरा है। जैन मुनियों को हाईएस्ट ऑनर, साधु संतों को हाईएस्ट ऑनर क्यों है पता है? उनके पास कुछ नहीं है, उसी का ऑनर है हमारे देश में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। दैट इज कॉल्ड ग्रेट। ग्रेट। और मैं बहुत जगह ये पूछता हूं, लेकिन कोई ग्रेट बनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ देना ये ग्रेट नहीं है। पता है 5 बातें आई विल शेयर विथ यू। एक, जो क्रिएट करते हैं उन्हें ग्रेट कहा जाता है। एनी क्रिएशन, बहुत बड़ा आपने कुछ क्रिएट किया, यू आर ग्रेट। आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की बहुत बड़ी। आपने सुना था इस पेंडेमिक में भी संघ ने पूरे देश में शांति से बहुत जबरदस्त काम किया है। दे सॉल्व द प्रॉब्लम। जो लोग बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन्हें ग्रेट कहते हैं। जो रिसर्च करते हैं, जिन्होंने वैक्सीन का रिसर्च किया है, ग्रेट पीपल, क्योंकि वो एक रिसर्च से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। दैट इज कॉल्ड बीइंग ग्रेट। जो सेवा करते हैं उन्हें ग्रेट कहते हैं। जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें ग्रेट कहते हैं। छोटा कंट्रीब्यूट करोगे तो ग्रेट नहीं कहेंगे, अच्छा कहेंगे। आप जितना ज्यादा करोगे, जितना अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, क्रिएट करोगे, दैट इज साइन ऑफ ग्रेट। ये हमारी भारत की परंपरा है। स्टॉक मार्केट पर यहां नहीं रिस्पेक्ट दिया जाता, अच्छा कहा जाता है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। ये थोड़ा पीछे हाई हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा आपके लिए एक बार। मुझे एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे मैडम ने भी कहा था, हम खाना खा रहे थे तब, ठीक है, उन्होंने कहा था हु आर यू, या फिर हु एम आई, आप कौन हो? मुझे एक बार पहले फिर से स्टूडेंट, पास स्टूडेंट हाथ उठाए प्लीज। पास स्टूडेंट्स, पीछे पीछे, पास स्टूडेंट्स। यार मैं टीचर को ही पूछ ले रहा हूं गलती से। ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। मुझे बताओ आप कौन हैं? आई एम द एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ओके, गुड वन। और थोड़ा डीपर और वाइडर सोचिए, बेसिक सोचिए, बेसिक। आप कौन हो? हाँ, अरे तू आ जा यार। ह्यूमन। हाँ, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, सही में तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, यस नो? कितने लोग ह्यूमन बीइंग है? हाथ उठाए। नहीं, हाथ उठाए, बात तो हाथ की हुई है, ठीक है, हाथ उठाए। थोडं आजूबाजूला बघून घ्या, कोणी वेगळं कॅटेगरी आली असेल। ओके, दैट्स फाइन, हाथ नीचे कीजिए। मुझे एक जवाब दीजिए, बेसिक, मेरे ज्ञान में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी। ह्यूमन और एनिमल्स, इसमें क्या फर्क होता है? ओके, मनुष्य और जानवरों में ये फ़र्क है। मनुष्य जो होता है वो दूसरों के लिए कमाता है, दूसरों की सेवा करता है, और जो जानवर है वो स्वयं की सेवा कर सकता है, स्वयं के लिए ही कर सकता है। तो ये एक बार तालियां दी उनके लिए। बेसिक फर्क क्या है बताइए? ह्यूमन और एनिमल में बेसिक फर्क क्या है? यस, Human being has emotions, animal doesn't have, I guess. एनिमल को तो इमोशंस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, Sir, the ability to think and act according to that. The ability to think. So, बहुत बढ़िया। आपका नाम? अपूर्वा जोशी। इन्होंने पहला आंसर ऐसा दिया है। ओए, आंसर तो सुन बंदे। आंसर ये है, ह्यूमन बीइंग्स सोच सकते हैं,
एडवांस लेवल पर। जो एनिमल्स है बेटा वो शायद सोच सकते होंगे लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पर। सोचने की क्षमता ज्यादा हमें दी है, ओके? और ये सोचने की वजह से और क्या क्या हम कर सकते हैं और एनिमल नहीं करते, कौन बताएगा? हाँ बेटा। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो ज़्यादातर तो एनिमल्स दूसरे अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो वो अटैक कर देते हैं और उनके पास बिना थिंक के बिना कुछ करे वो खुद के लिए वो किसी को भी मार डालते हैं। और ह्यूमंस अगर उन्हें कुछ चाहिए तो अपने थिंकिंग स्किल्स, मनी और खुद के नॉलेज से ही लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, एज ए ह्यूमन बींग्स हम लोग दूसरों को राइट टू लाइफ दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ऐसा कभी देखा है, आप जब कहीं जाते हो तो ऐसा कभी देखा है कि एक कुत्ता बैठा है और सपना देख रहा है कि एक दिन मैं बहुत डेवलप कुत्ता बनूंगा? नहीं, नहीं। आपने ऐसे कोई चूहे देखे हैं कि वो कहते हैं मैं इतना इतना तरक्की करूंगा, ये मेरा सपना है कि मैं 1000 चूहों को काम दूंगा? नहीं। तो बेटा, सोचना, सपने देखना, इंस्पायर होना, इंस्पायर करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना और ट्रांसफॉर्मेशन खुद में करना, ये सिर्फ इंसान कर सकते हैं। अभी मैं अलग सवाल पूछता हूं, जो सपने नहीं देखते उन्हें क्या कहोगे? यस नो? क्वेश्चन समझ गए? सोतड़। नहीं। जो सपने नहीं देखते उन्हें क्या कहोगे? ह्यूमन और एनिमल? एनिमल्स। एनिमल्स। आपने ऐसी बिल्लियां देखी कभी कि आज हमारे पास 200 लीटर दूध है, ठीक है, और बहुत से गायों को या बहुत से दूसरे प्राणियों को कुछ नहीं मिला, चलो उनमें जाकर बांटते हैं? ऐसा देखा कभी आपने? कभी नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर अभी मैं पूछ रहा हूं, ध्यान देना। सिमिलैरिटीज क्या है? प्राणियों का जीवन कैसे होता है पता है? 4 ही एक्टिविटी होती है। सोना, सोना यानी जागना भी आ गया उसमें, सोना जागना, खाना, खाना आया तो नेक्स्ट एक्टिविटी भी आ ही गई उसमें, ठीक है, और बच्चे पैदा करना, ठीक है। तो जो प्राणी है ना बेटा, उसकी फैमिली होती है। किसकी लेंगे? घोड़ा है, ठीक है, या फिर पंछी है कुछ, तो वो क्या करते हैं? वो सुबह उठते ही खाना खाने की खोज में चले जाते हैं। पता है आपको, काम करने जाते हैं वो खुद खाते हैं और उनके बीवी के लिए या उनके हस्बैंड के लिए और उनके छोटे छोटे पिल्लों के लिए चोंच में लाते हैं। पता है आपको? हर डॉग भी वही करता है, हर एनिमल यही करता है कि वो खुद खाता है और खुद के फैमिली के लिए लेके आता है। यस नो? यस। आपने ऐसा देखा है कभी कि कुछ कौवे आए, उन्होंने उनके फैमिली के भी लिए और दूसरे प्राणियों को के लिए भी लेके आए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो जो लोग खुद खाते हैं और अपने फैमिली को भी खिलाते हैं हमेशा, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी। यस नो? यस, वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन, जो लोग, जो ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, खुद उसका फायदा लेते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, उनको आप क्या कहोगे? ना ना ना, वी हैव ओनली 2 कैटेगरीज, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स. Which type of life is it? It's animal life. Yes, no? Yeah.
इट्स एनिमल लाइफ। प्राणी कभी दूसरों के लिए अपने जिंदगी में कुछ डिसाइड किया और कर रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स। हाँ हाँ, या यस, एग्जैक्टली। देयर इज अ साइकिल। प्राणियों में, नेचर में एक साइकिल होती है, उसमें वो लिमिटेड इसमें करते रहते हैं। वो उसके सिवा अलग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नेवर। वो सोचने की क्षमता सिर्फ किसमें है? ह्यूमन बीइंग्स। क्षमता है, कैपेसिटी दी है, रैम रोम। यूज किया तो है, नहीं किया तो नहीं है। और होता यह है मेरे प्यारे दोस्तों, वी हैव ऑलवेज एनिमल लाइफ मैक्सिमम टाइम। मेरा बहुत अच्छा और अच्छा, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैं एक बार सेटल हो जाऊं ना, एक बार मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं समाज के लिए कुछ करने वाला हूं, मैं उनको बोलता हूं उसके पहले यदि कोरोना आ गया और तू ऊपर चला गया तो काम बाकी रह जाएगा। वी हैव एनिमल लाइफ। ह्यूमन लाइफ में यह है कि आपके पास जो है उसके साथ आप कुछ कर रहे हो दूसरों के लिए, वो भी निस्वार्थ, उसमें कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं आना चाहिए। यह हुआ अच्छा इंसान, एटलीस्ट उस लेवल पर। और कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं 2-4 साल में एक बार कुछ कर दिया और उसके फोटो हर जगह घुमा रहे हैं। अच्छा इंसान, विमल अंकल जी और डॉक्टर मैडम के माता पिता उन्हें कहा करते थे कि आप भूखे हो, खाना नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है आपके गांव में, और आपको आधी रोटी यदि मिल गई, कितनी? आधी, हाफ, तो आपके मन में यह आना चाहिए कि इसमें से भी मैं आधी ही रखूंगा, और मेरे से जो ज्यादा भूखा आज ही है उसको मैं पहले ढूंढ कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड अच्छा इंसान। और एनिमल लाइफ कैसा है? यार ये आधी कैसे है, यानी दूसरी आधी कहां गई, मुझे ढूंढने दो पहले। दिस इज कॉल्ड एनिमल। यस नो? या। मुझे कुछ ग्रेट लोगों के नाम बताएंगे आप? ग्रेट, हाँ बोलिए, कौन बोला? टाटा। ग्रेट लोगों के नाम बताइए, और वो ग्रेट क्यों है वो बताइए। भीमराव अंबेडकर। अरे वाह, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए जो बुरा होता था उसको रोका। और ह्यूज कम्युनिटी के लिए, ह्यूज कम्युनिटी, तो ग्रेटनेस की लेवल आ जाती है। और कौन? और रतन टाटा है। और रतन टाटा है। ओके बच्चों, अब्राहम लिंकन, वो पहले स्ट्रीट लाइट्स की मदद से वो पढ़ाई करते थे और उनने एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए। हाँ, लेकिन इसके लिए नहीं ग्रेट है वो। ग्रेटनेस होता है बेटा काम की वजह से, और उस काम का कितने लोगों को फायदा होता है। ओके, वेरी गुड। लेकिन ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। हाँ 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 हाँ। गांधी जी क्यों? उनके वजह से फ्रीडम में हेल्प मिली, फ्रीडम मिला। उनकी वजह से, यानी कुछ 3-4 लोगों ने जो लीड किया हमारे देश में, ठीक है, जैसे सुभाष बाबू भी थे, गांधी जी भी थे, भगत सिंह भी थे, तो इन्होंने एक विचार दिया, डॉक्टर बाबा साहेब थे, कि हमें स्वतंत्रता मिल सकती है ना, और करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। इसलिए बहुत अच्छे। और पीछे बोलिए। मदर टेरेसा। मदर क्यों? Because being a mother of every, ओके। बाबा आमटे जी, कुष्ठ रोगियों का उन्होंने इलाज किया। और ग्रेट लोग बताइए कुछ। सर यू। नहीं भैया, मेरी अभी बारी नहीं है अभी उस राह पर हूं, लेकिन 10-15 साल के बाद मिलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्या बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ग्रेट। और
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी विवेकानंद, यस यस। आप समझ रहे हो बेटा, सारे लोग में एक समान बात है, सेम फीलिंग है, सेम पॉइंट है। क्या पता है, खुद तो डेवलप हुए हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ, लाखों करोड़ों लोगों का। और मुझे लगता है ये मैंने कॉलेज के लाइफ में समझ लेने की कोशिश की, आज भी समझ रहा हूं। और एक बात बताऊं, पते की बात, थोड़ा सीनियर स्टूडेंट को बताता हूं। हमारे मन में कहीं ये होता है कि यार ये ग्रेड वगैरह बनना हमारा काम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना, घर भी बताया जाता है सबके बस की बात नहीं है। ये झूठ बात है, ऐसा नहीं होता है। ये सबकी बात है, जो जैसा सोचते हैं वैसा वो बनते हैं, यही सच है। आप जो सोचोगे वही आप बनोगे। यहां पर 25-40 साल पहले कुछ नहीं था, जंगल था, जंगल, कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा काम यहां करेंगे, और उस सोचने से वो काम शुरू हुआ। सोचने से क्या होता है, एक वीडियो दिखाता हूं, फिर बात करेंगे। हमने क्या सोचा और क्या हुआ ये बता रहा हूं। दिस इज ओनली पावर ऑफ थिंकिंग। पावर ऑफ थिंकिंग के लिए दिखा रहा हूं, ध्यान देके सुनना बेटा। हाथों की लकीरों में नसीब नहीं होता, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। This girl is deprived of both hands, but she has dreams in her eyes. And this courage to envisage the dream is bestowed to her by Deepastham's Manobal. With the mission for students aged above 18 who hail from poor, tribal community, specially abled and orphan in our country should get a quality education, and a society should empower them by considering as one of ourselves. With his colleagues, Professor Yajuvendra Mahajan led the milestone of Manobal and Sanjeevan projects under Deepastham Foundation. Deepastham is the first and foremost institution in India which offers all types of free residential training courses and guidance of competitive examinations like UPSC, MPSC, staff selection, banking, computer training and skill development to visually impaired, orthopedic, deaf, mute, orphan and tribal students. By wiping out the misconception that disability is a shortcoming, Manobal added fuel to the dreams of several specially abled students. Today, many students in the Manobal initiative are living proudly by standing on their own feet. Today, self-confidence has taken the place of tears in their eyes. Rather than crying, they are fighting with the adverse situation. And this light of hope is brought in their lives by Deepastham's Manobal initiative. Yearly about rupees 80,000 is the expenditure for each student living here. Donations are received from various noble individuals and organizations. Currently, 272 students live in the Manobal initiative. Manobal is considered as a home away from home for these students. They don't need anybody's pity, but ask for friendship, trust, and affection. By receiving all-round growth, love, happiness, and self-confidence, these students have also become IAS officer, income tax officer, and bankers, and are still fighting with the situation. This is a new dawn for an underprivileged youth of India. Let's come together to make this world more beautiful and also make our life more meaningful.
जब दिल में था घना अंधेरा, लगता मैं हूं कि मैं नहीं हूं। कहीं से आसमां में उजाला आया, मन का पंछी गाता और गोते लगाता। अरे आसमां तो हमेशा से खुला था। मुझको मेरे होने पे यकीन आ गया, मुझको मेरे होने पे यकीन आ गया। आप बस सोचिए, वो जरूर होगा। 2012-13 में हमने सोचा था कि देश में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो ऑर्फन है, ऑर्फन का मतलब समझते हो? मैं आपसे कभी बाद में बात करने आऊंगा। वी आर सो ब्लेस्ड, वी हैव पेरेंट्स। मेरे पास अभी 69 ऐसे बच्चे हैं, माँ बाप ही नहीं देखे, पता नहीं माँ बाप कौन है, और आपकी उम्र के हैं 18, 19, 20, 21, 22, वो अभी हमारे साथ रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, या फिर जिनको हाथ पैर नहीं है, ये बच्चे भी पीएचडी करेंगे, ये बच्चे भी इंजीनियरिंग करेंगे, ये बच्चे भी आईएएस बनेंगे, ये बच्चे भी कमिश्नर बनेंगे, ये बच्चे भी बिजनेसमैन बनेंगे। क्यों नहीं बनना चाहिए? हम भाग्यवान हैं, भाग्यशाली है, आपके माता पिता ने इतनी अच्छी जगह हमें पढ़ने के लिए भेजा है बेटा, इसलिए आप आगे बढ़ोगे। ना बढ़ोगे तो सरप्राइज है। लेकिन जिनको ये कभी नहीं मिलता है, यदि उनको भी मिल गया ना, तो वो भी आगे जा सकते हैं, ध्यान में रखना। तो हमने जब ये आइडिया बताई तो बहुत से लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हो गया पॉसिबल। 250 से ज्यादा बच्चे अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं अभी, जिनको आंखें नहीं है, हाथ पैर नहीं है। यस, एंड इट इज देयर विल पावर, दे आर डूइंग इट, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। टीचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, माध्यम है। इट्स पॉसिबल। हम जो सोचेंगे वही होगा, हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। देखो हम क्या क्या मांगते हैं, ऑनेस्टली बताना हमें क्या क्या चाहिए। अभी मुझे पता है आप मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, घर तो होता ही है हमारा, लेकिन बहुत ही अच्छा घर चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? यस नो, बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा, अल्ट्रा मॉडर्न, बहुत बढ़िया घर बनाना है। ओके, हाथ नीचे। बेस्ट क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास कार चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, कोई बात नहीं है उसमें। ओके, गुड। ज्वेलरी चाहिए, अच्छी अच्छी ज्वेलरी चाहिए। यस नो, व्हाई नॉट। बहुत बढ़िया कपड़े चाहिए, व्हाई नॉट। यस यस। आपको पता है हमारे सपने यही है सारे, बहुत से लोगों के सपने यही होते हैं। आवर ड्रीम्स आर इन थिंग्स, वस्तुओं में सपने होते हैं। सपने में यह नहीं होता है कि हमें यह काम इस लेवल पर करना है कि हम ग्रेट बनेंगे। यह सपना नहीं होता है। और जो सपना नहीं है, जो सोचा नहीं गया, वो कभी होता नहीं है पूरा, कभी नहीं होता है। हम प्राणी बन के रह जाते हैं। एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? अच्छी जॉब मिले या अच्छा बिजनेस हो। अच्छी जॉब और अच्छा बिजनेस किसे कहते हैं हम? ये जॉब अच्छी है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? अरे यार पैकेज कितना है वो देखते हैं ना। यस नो, यस, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज। ओके, और पैसे क्यों चाहिए? हाँ, ये मेरा दोस्त है। लाइफस्टाइल। हाँ बेटा, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी सारी जरूरतें, हमारे सारे सपने लाइफस्टाइल के बारे में है, लाइफ के बारे में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग रिगार्डिंग आवर लाइफ और अदर्स लाइफ। ऑल आवर जिंदगी इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और मुझे पता है यहां ये ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हमारी ये जो स्कूल है इसका कहना है कि हमें खुद की सिर्फ जिंदगी नहीं सुधारना है,
हमें लीडर बनकर हमें हजारों लाखों लोगों की जिंदगी सुधारना है। लाइफस्टाइल तो इट इज एब्सोल्युटली लाइक एनिमल ओनली। विथ लाइफस्टाइल इफ यू हैव लाइफ थिंग्स देन इट्स ह्यूमन। तो मेरा सवाल है, क्या आपकी जिंदगी के सपने ये ग्रेटनेस की ओर है? क्या आप लाइफ के बारे में सोच रहे हो? क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो? और कर रहे हो तो कितना कर रहे हो? लोग बिस्किट बांटते हैं और बोलते हैं सोशल सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गुड, इट्स नॉट बैड वर्क। आपकी ताकत क्या है और आप काम क्या कर रहे हो? और हमारी विचारों की यह परंपरा यहां है कि यहां जब आप इकट्ठे आ रहे हो तो एक साथ एक क्लासरूम के 10 बच्चे साथ में आ रहे हो, बोल रहे चलो अगले 2 साल में 3 साल में मिलकर ऐसा कुछ करते हैं। That is called towards greatness, and it is possible. It is possible. So let's think about life and not lifestyle. Let's be human being and not animal life. I have 5 minutes. Out of that, 3 minutes we will have question answer session. आपको इसमें कोई भी सवाल है आप कृपया पूछ सकते हो. Any question? सर आपसे एक सवाल करनी है मुझे। आपने अपनी ये अचीवमेंट कैसे हासिल की और इसका पीछे आप किसको अपना मेन गुरु मानते हैं? मैं सही बताऊं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, सही ही बताना चाहिए। ऐसा एक गुरु नहीं मिला मुझे सही में बहुत गुरु है। मैंने इतने लोगों से सीखा है और सीखते ही रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक से आप सब कुछ ले नहीं पाते। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं ये क्यों कर पाया, वो थोड़ा हम एक विचारों के हैं इसलिए बोल रहा हूं। आप जितना ज्यादा निस्वार्थ होते जाओगे ना, उतनी आपकी ताकत बढ़ती है, उतना आपका काम आगे बढ़ता है, उतने ज्यादा लोग आपके साथ आते हैं। आप बताइए, यहां पर यदि ऐसा कुछ बनाना है तो विमल अंकल जी को एक ही काम करना है, बस रिक्वायरमेंट क्या है, और वो आजकल तो सोशल मीडिया पर छोड़ देना है, 2 दिन में काम हो जाता है। क्योंकि वो उनके प्रॉपर्टी के बारे में काम नहीं है ना। वो आप जब खुद के लिए कुछ करने लेते हो तो इट इज लिमिटेड ऑलवेज। जब आप सबके लिए कुछ करते हो और सबको पता है ये पूरा निस्वार्थ है, तो लोग बोलते हैं कृपया ये स्वीकारे और हमें ये सम्मान का मौका दीजिए। तो निस्वार्थ जितना होते जाएंगे, इसका मतलब है सब छोड़ दो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें जितना लग रहा है तो हमारी जरूरतें भी कम होनी चाहिए। हो क्या रहा है, हमारी जरूरतें इतनी बढ़ रही है और वो एक ही वजह से बढ़ रही है, पता है, वी कंपेयर विथ अदर्स। हमारी शादियां भी ऐसे ही होती है, किसने कितना खर्चा किया, अरे उन्होंने तो वो उधर इतना किया। वो शादी के पहले क्या करते हैं, फोटो वीडियो क्या होता है, हाँ वो प्री वेडिंग में 25 लाख खर्चा किया, पता है, वो तो कुछ नहीं, हमारे यहां 35 लाख रुपए किया, कुरुक गए थे पूरे 10 लोगों की टीम लेकर। दिस इज एनिमल लिविंग। हम लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हम इस जो हमारी विशेष परंपरा है उनके साथ कंपेयर नहीं करते हम, है ना। सो इसलिए, और ये थोड़ा करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं सब कुछ किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपका दोस्त बन के बताता हूं, जितने सीनियर स्टूडेंट है, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बिलीव मी। सी दिस इज फैमिली। मेरे अभी 2, 4, 5, 10 हजार बेटे बेटियां देश भर में, मैं जिस शहर में जाऊं, जिस गांव में जाऊं, जिस राज्य में जाऊं, मेरे बेटे वहां पर। सच अ ग्रेट। और ये जो मैं कह रहा हूं, ऐसा मत मानना कि ये कोई ग्रेट है और हम ऐसे नहीं है। वी आर सेम, वी आर लिटरली सेम। द डिफरेंस इज ओनली विथ व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू वर्क, दैट्स इट, नो डिफरेंस। या नेक्स्ट क्वेश्चन। आज रात में थोड़ा सपनों पर काम कर लेना और वस्तुओं के सपने, हाँ या पूरा डिटेल हाउ डू यू वर्क पे हो, आप दो रोशनी थोड़ा हाउ डू यू वर्क पे थोड़ा रोशनी दीजिए ना। एनी वर्क सर, अभी जैसा अभी आपने बोला परोपकार के लिए ही, पता अपने को समाज के लिए जीना है, हाउ डू यू वर्क के ऊपर थोड़ा। ओके, थोड़ा समय कम है लेकिन फिर भी बताता हूं। हाउ डू यू वर्क का मतलब मेरे लिए है आपका पर्पस क्या है। जब कोई भी काम करोगे तो मुझे पूछोगे ना
तो अभी धीरे धीरे हुआ ये मेरे बारे में। अभी मैं यहाँ आया हूं ना, तो मेरे लिए सही में कुछ नहीं है। मुझे इतना ही है कि कितने लोगों के जिंदगी में कुछ तो हलचल आज हो जाए, बस मेरा इतना ही काम है। मैं इतना स्ट्रांगली ये सोचता हूं, साइड के रूम में जाकर मैं ये सारा विजुअलाइज कर रहा था। मैक्सिमम आप सेल्फलेस होते जाओगे ना, और किसी के लिए पूरी ताकत से करने लग जाओगे, आपकी ताकत बढ़ जाती है। मैं यही करता हूं। दूसरा जो कहा, बेस्ट, बहुत बेस्ट। दूसरा, पूरे उत्साह से। मेरे दोस्तों, मेरे बेटे, आपको तो हाथ उठाते नहीं है हम ढंग से, तालियां। मेरे बेटों को तो हाथ ही नहीं है। हाथों की लकीर में नसीब नहीं होता है, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमारे पास सब कुछ है यार। यू कैन क्रिएट डैम एनीथिंग। वो जो स्कूलों में हमारे यहाँ रूरल एरिया में लिखा होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमें लगता है वो टाइम पास कर रहे हैं। इट्स रियलिटी। आई एम अ BA ग्रेजुएट, BA MA, बट आज ये महसूस करता हूं, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हम ये जो प्रोजेक्ट है अभी, ये पूरे राज्य में रेप्लिकेट कर रहे हैं। 15 साल में भारत के सारे दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्यार भी मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा 18 के बाद, और उनको हायर एजुकेशन की सारी इकोसिस्टम होगी पूरे देश में। ऐसा हमारा महान देश होगा। ये हमारा बिल्कुल पक्का वादा है। 1 रुपया हमारे पास नहीं है, नहीं था और नहीं है। अभी 16 करोड़ की लागत से हम नेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। इट इज ऑल पॉसिबल इफ यू डिसाइड। आप आपका बिजनेस करते रहिए, नो प्रॉब्लम। एक समय निकालिए। आपने प्लान नहीं किया ना, तो 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन तो आप कहोगे यार अभी और कितना काम करना पड़ेगा। पुट इट इन द स्ट्रक्चर, पुट इट इन द प्लान। मैं कहता हूं दूसरों को 3%, आपको कहता हूं 10%। 10% समय और 10% आप जितना कमाते हो उसमें से आपको समाज को देना है। मैं मिनिमम कह रहा हूं, ये मिनिमम। ये 10% लगभग 80% तक जाना चाहिए। मैं राम रत्न विद्या मंदिर में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरे स्कूल में बोलूं तो वो 10 में ही सो जाएंगे, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम। और देखो फिर जिंदगी क्या है। मुझे बताओ, ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? Why people are working? एक दिन देंगे तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, इतना उनके पास है। Why people are working like this? हजारों लोगों की भावनाएं और काम है, इसलिए तब ये मंदिर खड़ा होता है। क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनको यह पता चला है दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। आप कितनी बड़ी पार्टी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है यार, जिंदगी के लिए जितना जरूरी है करो, ज्यादा करो, नो प्रॉब्लम। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट, हाउ बिग यू कैन थिंक। प्राणी और इंसान में और एक फर्क है, और वो फर्क है जो थिंकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो है ब्रेन। आपको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ब्रेन। वो ना हो तो कुछ नहीं होगा, बाकी कोई भी स्पेयर पार्ट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि यार ब्रेन दिया है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेश्चन? और एक छोटा 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा और रुक जाऊंगा मैं। एनीथिंग? एक मिनट मुझे इसका रिवीजन भी लेना था, लेकिन समय नहीं है। आप जरूर सोचना, जिन्हें पॉसिबल है, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहाँ जाना है। पहले तो हमारे सारे कल्चर में दिया है को हम सो हम, मैं कौन हूं, मैं क्या करने के लिए आया हूं। यू कैन क्रिएट। आप पता है, आप जहां जहां गए हो वहां राम रत्न विद्या मंदिर खड़ा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड टू दिस संस्था। आप वहां के संस्थाओं को राम रत्न विद्या मंदिर बनाओ पहले। उसके लिए 10% समय और कम से कम 10% आपको राशि देनी है। हम ये कर सकते हैं, वरना यार क्या फर्क हुआ। हमारे यहाँ झेडपी के स्कूल में जो पढ़े या जनरल स्कूल में पढ़े और हमारे स्कूल में पढ़े, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस, एंड आई कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम योर आंसर्स। वी आर वेरी होपफुल अबाउट इट, एंड बिलीव मी यू कैन डू इट। मैं आप ही के हिस्से हूं, एकेडमिकली तो आपसे भी कम था। यू कैन डू इट। मैं मेरे एक बेटे को ला नहीं पाया यहां पर,
उसका एक वीडियो बताता हूं आपको। हाँ राजेश, दीपस्तंभ फाउंडेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कभी संडे वगैरह देख लेना, कुछ बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है विच कैन इंस्पायर यू। या लास्ट वन। हाय, मैं राजेश, मैं इंजीनियर हूं। मेरा सपना है कि मैं आईआईटी में पढूं और मैं मनोबल में गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं अनाथ नहीं। मेरा परिवार है दीपस्तंभ फाउंडेशन का मनोबल। लोगों को बुरा लगता है कि मेरे पास हाथ नहीं है ना सही, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं। हाथ भले ही ना हो, पर आसमान को छूने की ख्वाहिश मेरी भी है। हाँ, मेरे पास दिल है जो आपके दिल की धड़कन सुन सकता है। लॉकडाउन के दिन मेरे लिए भी मुश्किल थे, पर हौसलों की मशाल मैंने भी जलाए रखी। लोगों के लिए मैं तन से दिव्यांग हूं, पर मेरी नजर में जो निराशा की बातें करते हैं वही असल में विकलांग है। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, जो है वो बहुत है। जो बीता उस पर रोने के बजाय आइए नए साल की सुबह नई उमंगों से भर दे। अपना और अपनों का मनोबल बढ़ाए। ये मेरा बेटा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईआईटी की भी तैयारी कर रहा है, हमारे पूना सेंटर में रहता है। ठीक है, कभी महसूस करके देखना, माँ बाप ही नहीं है आपके जिंदगी में, महसूस करके देखना हाथ भी नहीं है। पढ़ाने के लिए वो ऑर्फन बच्चों की स्कूल थी जहां पर कुछ भी नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें से कोई आगे आ रहा है। ठीक, सो इट्स पॉसिबल एंड इट्स आवर ड्यूटी because we have received such a great things in our life, really. So, in short, आपकी जिंदगी ग्रेट होगी जब आप मैक्सिमम सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करोगे, वरना आप जनरल इंसान कहे जाओगे। आपके लाइफस्टाइल से, आपके पैसे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये सोशल काम भी आप नहीं करोगे तो वो रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो होते रहेगा। वो विशाल परंपरा है हमारे देश की, और मुझे पता है हमारे ही स्कूल के हम में से ही ये सारे मैक्सिमम काम करेंगे आगे अलग अलग जगह, क्योंकि दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। सेल्फलेसली देश और समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, दैट इज द प्रगति पुस्तक ऑफ दिस स्कूल ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफ एंड आवर थिंकिंग। खुद की संतान के लिए तो जानवर भी कुर्बानी दे देता है। सच्चा मानव तो वही कहलाता है जो दूसरों के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दे, और यही परंपरा से हम नाता रखें। आपको शुभकामनाएं। इस स्पेसिफिक काम में किसी को रुचि हो तो जरूर संपर्क करें। आपके एरिया में कोई भी दिव्यांग और अनाथ या अंडर प्रिविलेज 18 अबव हो और उसे बड़े सपने हैं, कुछ करने की चाह है, तो उसे जरूर, जलगांव और पूना में यह काम चलता है, वह आप जरूर भेजिए, आप जरूर देखने आइए। इसी केशव सृष्टि और संघ के सारे विचारों से प्रेरित, विवेकानंद जी से प्रेरित हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे आपने सुना इसलिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Namaskar sir. So this is Aarti Yadav and I am privileged and I am really honored to express my vote of thanks towards Yajurvendra sir. We are really honored sir. And जसं तुम्ही बघितलं असेल PPT मध्ये की ज्ञानबोध हे आम्ही एक सिरीज सुरू केली आहे and you are the first speaker of this ज्ञानबोध series. So we are really honored and we are really privileged to have you here. So
Once again, I extend my warm welcome, warm gratitude from the entire Ramratna Vidya Mandir family. आभार एक भावना आहे. आपल्या मनातील प्रेम, आदर, माणुसकी दर्शविणारा भाव म्हणजे आभार. आणि आमचे आभार तुमच्यापर्यंत सर. So from this very inspiring lecture of sir, we have learned that there is no limit to do anything. Okay, sky is the limit. And when we listen to sir, we have also understood that the sky is the limit. And when I was listening to sir, I could recall many of the inspiring thoughts that great people don't do different things, but they do the things differently. And sir is one of the living examples of that, and you have set an example for us, sir, and you have already set a path for us, and for all these young students who are sitting in front of us today, you have set a path for them. You have given them the direction to dream, and how through our small acts, we can give so much to the society. And we as citizens, it is our noble responsibility that as we are a part of this society, we also owe something to the society, and we should give back something to the society, and then only we will be satisfied in our life. And that feeling of satisfaction, I think, will make you one of the most happiest person in the society. Because as sir says, we should not find happiness in the materialistic things. Happiness is all around us. And then we come to know that how in small and very small little things that are present around us, how we can find happiness in them and how we can spread happiness. If we are happy at soul, I think we can spread happiness. So that is what I have really learned from you, sir, throughout your speech, whatever speech and whatever the examples you are setting throughout this speech of yours. And we are really inspired by you. And I hope the young minds who are sitting over here in this auditorium today, they will be definitely inspired by you. So I'll just like to sum up whatever the great deeds are done by sir. काहीही झाले तरी आपल्या यशाचा मार्ग सोडू नका. काहीही झाले तरी आपल्या यशाचा मार्ग सोडू नका. संकटे आली, अडचणे आली, विरोध झाला, अपमान झाला, कोणी नावे ठेवली, पाय ओढले, थट्टा मस्करी केली, तरीही यशाचा पाय सोडू नका. चांगल्या कामात निर्लज्ज व्हा. चांगल्या कामात निर्लज्ज व्हा. मान सन्मान, इगो, मोठेपणा, अहंकार सर्व सोडा. फक्त ध्येय गाठणे लक्षात ठेवा. फक्त ध्येय गाठणे लक्षात ठेवा. So this is what we have learned from you, sir. Whatever you are giving back to the society has really helped us, and it has also set a path for us, saying that how we should be selfless. We should be selfless and we should be working selflessly towards giving back to the society. Thank you very much, sir. And this will be every time remember that for the Gyan Bowl series, we had one of the most privileged personalities, and we'll really remember whatever words of wisdom you have shared with us. And all the best for all your upcoming future endeavors, and hope you spread happiness in many more lives who will be attached to you and will be associated with you through your Deep Stump Foundation. Because I think your Deep Stump Foundation says that, as I was just browsing it, persistent, determination, willpower, these are the three, you can say, key qualities that are within you and you would like to spread within everyone. So thank you once again from the entire Ramratna Vidya Mandir family. Dhanyavad, Aabhar.